A very good morning to all of you. So in the last class we have completed a topic, that is multiple shops or the chain stores, in which we have studied the what is the meaning of the multiple shops or the chain stores and its different features of the chain store. The first one is large size, second is specialized in one line, third one is centralized purchasing, fourth one is a decentralized sale, fifth one is quality, sixth is elimination of the middleman, seventh one is uniform prices, and the eighth one is cash sales. Okay, and next topic what we have studied is difference between the departmental stores and the chain stores. So along with the point of the difference, and the point of difference were variety, credit or cash basis, location or the risk, types of customer, services, decoration, pricing, advertising and flexibility. Okay, we have also started a topic that is mail order retailing. So mail order, simply in the mail order, any retailing seller contact to the potential buyer through the advertisement and the mail publicity, okay, by sending the circulars, catalogs, price list, samples or the booklets. So the customers are required to place their order by the post. Okay, so and we have also studied the different features of the mail order houses, that is a detailed mailing list containing name and address of the potential customer maintained by the mail order houses. The seller sends circular and catalogs etc. to the customer by post. The customer also place order by selecting goods from the catalog by the post. The customer क्या करता है, order को place करता है जो भी catalog seller ने post किया है. Generally the standardized items are bought and sold through the mail order houses. Okay, एक जो standard और branded product ही क्या होते हैं, bought और sold होते हैं through the mail order. पेमेंट इज़ रिसीव्ड थ्रू दी वैल्यू पेबल पोस्ट और दी रजिस्टर्ड पोस्ट. ओके, जो भी पेमेंट मिलती है किसी भी रिटेलर को, वो कैसे मिलती है, थ्रू दी WPP और दी रजिस्टर्ड पोस्ट. जो भी पोस्ट है उस जो जिससे भी रजिस्टर्ड है वो उसी पे वो पेमेंट सारी मिलती है. एंड द ट्रेडिंग प्रोसीजर क्या है इसका. सो फर्स्ट वन इज़ एडवर्टीजमेंट टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट. मीन्स उस प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट होता है. सबसे पहले एडवर्टीजमेंट होता है, वो किसी भी डिफरेंट कस्टमर्स के पास जाता है, इंफॉर्मेशन जाती है कि ये प्रोडक्ट कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी है. एंड ऑर्डर रिसीविंग, फिर उसके बाद क्या है, और कस्टमर क्या करता है, ऑर्डर करता है. फिर वो ऑर्डर रिसीव किसके थ्रू होता है, सेलर के थ्रू. सेलर उसको प्रोसेसिंग करता है, मींस उस गुड्स को डिलीवर करता है. एंड एट द लास्ट, एट द एंड, द रिसीव पेमेंट क्या होता है, पेमेंट रिसीव्ड हो जाता है. ओके, तो ये इसका प्रोसीजर है मेल ऑर्डर रिटेलिंग का. नेक्स्ट वन इज़ गुड्स सूटेबल फॉर दी मेल ऑर्डर बिजनेस. ओके, जो मेल ऑर्डर बिजनेस है उसमें कौन से ऐसे गुड्स हैं जो उसकी डिलीवरी और उसको बॉट एंड सोल्ड करना एक सूटेबल है फॉर दी मेल ऑर्डर हाउस बिजनेस. बिकॉज हर प्रोडक्ट इसमें क्या है, सारे ही सोल्ड आउट नहीं होते हैं. उसमें क्या है कि कुछ स्टैंडर्डाइज और दी ब्रांडेड प्रोडक्ट होते हैं, वही होते हैं. और पेरिशेबल गुड्स जो होते हैं, जो ईज़िली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो सारे प्रोडक्ट को क्या किया जाता है, इसके थ्रू डिलीवरी नहीं की जाती. ओके, सो ओनली फॉलोइंग टाइप्स ऑफ गुड्स कैन बी only following type of goods can be traded through the mail order retailing. First one is goods should not be perishable in nature. मतलब goods क्या हो, वो perishable ना हो, ईज़िली वो मतलब बहुत शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम का ना हो कि वो डिस्ट्रॉय हो जाए. goods should be standardized. goods क्या होना चाहिए, उसके एक स्टैंडर्ड होना चाहिए. नेक्स्ट वन इज़ goods should not be bulky. goods क्या होने चाहिए, वो बल्क में नहीं होने चाहिए, मीन्स लार्ज अमाउंट का एक साथ नहीं होगा. क्या होगा, शॉर्ट लार्ज प्रोडक्ट में, मतलब स्मॉल में क्या होगा, स्मॉल क्वांटिटी में वो होंगे. नेक्स्ट वन इज़ गुड्स शुड बी ईजी टू हैंडल. गुड्स क्या होने चाहिए, वो ईजी टू हैंडल, उसको ईजीली हैंडल किया जा सके. गुड्स शुड बी ईजिली एक्सप्लेन थ्रू दी पिक्चर्स एंड दी डिस्क्रिप्शन. जो भी गुड्स हो रहे हैं जिसको ऑर्डर करना है, वो क्या हो,
ईज़िली पिक्चर्स और डिस्क्रिप्शन के थ्रू उसको एक्सप्लेन किया जा सके। ठीक है, हम लोग जो भी मिंत्रा ये सबसे क्या करते हैं, ऑर्डर करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग पिक्चर्स देखते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं, उसकी क्वालिटी देखते हैं, तो उसके सारे डिस्क्रिप्शन हम लोग ईज़िली ऐसे ही प्रोडक्ट को कर सकते हैं जो ईज़िली हम उसके डिस्क्रिप्शंस को देख के उस गुड्स की क्वालिटी एज वेल एज़ उस प्रोडक्ट के बारे में जान सके। गुड्स शुड बी ब्रांडेड, गुड्स क्या होने चाहिए, वो ब्रांडेड होने चाहिए, ऐसे लोकल नहीं होने चाहिए, गुड्स शुड बी ब्रांडेड। ओके, सो कॉमन गुड्स सोल्ड थ्रू द मेल ऑर्डर रिटेलिंग आर, जो कॉमनली गुड्स जो सोल्ड आउट होते हैं थ्रू द मेल ऑर्डर रिटेलिंग आर दी बुक्स होते हैं, आर्टिफिशियल जो इमिटेशन वाली ज्वेलरी होती है वो होती है, पेन्स होते हैं, टॉयज़ होते हैं, वॉचेस एक्सेट्रा। ओके, तो द मेल ऑर्डर बिजनेस के थ्रू यही सारे गुड्स क्या होते हैं, कॉमनली सोल्ड आउट होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वन इज़ इन द लार्ज स्केल रिटेलर में ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन। तो अ वेंडिंग मशीन इज़ अ न्यू फॉर्म ऑफ direct retailing. It is a machine operated by coins or tokens. The buyer insert a coin or token in the machine and receives a specific quantity of product from the machine. Large scale retailing is possible through the vending machine by placing the machines at the convenient locations such as petrol pumps, railway station, airports, etc. Okay, so इसमें क्या होता है, सिंपली अ वेंडिंग मशीन क्या होती है, एक न्यू फॉर्म ऑफ डायरेक्ट रिटेलिंग है, मतलब एक नया फॉर्म है रिटेल ट्रेड के लिए। इट इज़ अ मशीन ऑपरेटेड बाय द कॉइन्स और टोकन्स। ये क्या होता है, ये जो मशीन एक सिंपल एक मशीन होती है जो कॉइन्स और टोकन के थ्रू इसको क्या किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है, यूज़ किया जाता है। सो द बायर इंसर्ट अ कॉइन और टोकन इन द मशीन। जो भी बायर है, जो भी हम लोग एज अ कंज्यूमर है, वो क्या करता है, सिंपली उस मशीन में कॉइन और टोकन को इंसर्ट करता है एंड रिसीव अ स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द मशीन। और उसके थ्रू वो क्या करता है, जितना भी पैसा इंटर किया है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट क्या है वहाँ से उसको मिल जाता है फ्रॉम द मशीन। सो लार्ज स्केल रिटेलिंग इज़ पॉसिबल थ्रू द वेंडिंग मशीन बाय प्लेसिंग द मशीन एट अ कन्वेनियंट लोकेशन सच एज पेट्रोल पम्प, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट एक्सेट्रा। ठीक है, जो लार्ज स्केल पे अगर रिटेलिंग करेंगे ये पॉसिबल तभी होगी वेंडिंग मशीन बाय प्लेसिंग द मशीन एट द कन्वेनियंट लोकेशन, मतलब उसको ऐसी लोकेशन पे हो, मतलब जो हर एक कस्टमर्स के लिए, बायर के लिए वो कन्वेनियंट हो, मतलब वो लोग के लिए वो ईज़िली वो ईज़ कर सके, वहाँ तक उस पर पहुँच सके और उसको यूज़ कर सके। सच एज पेट्रोल पम्प्स पे होना चाहिए, जैसे कोई भी प्रोडक्ट उसको चाहिए तो वहाँ पे वो मशीन ऐसी होगी तो वहाँ से वो प्रोडक्ट को ले सकते हैं। रेलवे स्टेशंस पे हो, एयरपोर्ट्स पे हो, तो ऐसी वहाँ पे मशीन को ये अवेलेबल कराना चाहिए। दिस मेथड ऑफ रिटेल सेलिंग इज़ वेरी पॉपुलर इन वेस्टर्न कंट्रीज। ये सब जो ये सारी जो मशीन्स हैं वो बेसिकली बहुत ज़्यादा पॉपुलर कहाँ है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादा पॉपुलर है। नाउ दीज आर बिकमिंग पॉपुलर इन इंडिया ऑल्सो। अब इंडिया में भी क्या हो रहा है, ये सारी मशीन्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही हैं। वेंडिंग मशीन्स आर यूज टू सेल प्री पैक्ड एंड लो कॉस्ट प्रोडक्ट ऑफ द मास कंजप्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो भी गुड्स वैसे होते हैं जो प्री पैक्ड है, मतलब पहले से वो ऑलरेडी पैक्ड है, ऐसा नहीं है कि वो खुले में मिल रहा हो कि जितना भी, तो पैक्ड होते हैं ऑलरेडी एंड लो कॉस्ट प्रोडक्ट। और जो प्रोडक्ट होता है वो लो कॉस्ट का होता है ऑफ द मास कंजप्शन, मतलब टोटल मास जिसका कंजप्शन करना है उसका जितने भी प्रोडक्ट हैं उनके लो कॉस्ट के ही प्रोडक्ट उसमें ज़्यादातर मिलते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक सॉफ्ट ड्रिंक मीन्स कोल्ड ड्रिंक, सिगरेट्स, पोस्टेज स्टैम्प्स जो होते हैं, टिकट्स एक्सेट्रा। सो इन दिल्ली नाउ वेंडिंग मशीन्स आर इंस्टॉल्ड एट पेट्रोल पम्प, रेलवे स्टेशन फॉर सेलिंग कोल्ड ड्रिंक एक्सेट्रा। मदर डेयरी is selling milk through vending machines, ATM कार्ड मशीन आर ऑल्सो वेरी पॉपुलर। ठीक है, दिल्ली में क्या है, ये सारी मशीन्स क्या हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, पेट्रोल पंप पे हैं, रेलवे स्टेशन पे, फॉर सेलिंग दी कोल्ड ड्रिंक। लोग बस जितने रुपीज़ की, अगर 20 रुपीज़ की है या 25 रुपीज़ की है, उसमें एंटर करेंगे कॉइन्स, तो या रुपीज़ एंटर करेंगे या उसके टोकन्स भी बनवा लिए जाते हैं, वो टोकन पे करेंगे तो उनको वहाँ से कोल्ड ड्रिंक मिल जाएगा। और मदर डेयरी ऑल्सो क्या करिए, मिल्क प्रोवाइड करिए थ्रू इस वेंडिंग मशीन से। इस वेंडिंग मशीन से मदर डेयरी के थ्रू मिल्क भी प्रोवाइड होता है
ATM कार्ड मशीन्स आर ऑल्सो वेरी पॉपुलर, ठीक है। ATM कार्ड मशीन्स भी क्या है, ATM में क्या करते हैं हम लोग, इंसर्ट करते हैं, हमें जितना भी मनी चाहिए हम वहाँ से विड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन है कि कोई भी लार्ज स्केल पे लार्ज रिटेलिंग होती है तो आप सिंपली उसमें कॉइन्स और टोकन को एंटर करोगे, उस पर इंसर्ट करोगे तो आपको जो भी प्रोडक्ट है वहाँ से आपको मिल जाएगा, ओके। नेक्स्ट इज मेरिट और द बेनिफिट्स ऑफ द वेंडिंग मशीन। सो व्हाट आर द डिफरेंट मेरिट्स एंड द बेनिफिट्स ऑफ द वेंडिंग मशीन। सो बाइंग राउंड द क्लॉक इज़ पॉसिबल, मतलब राउंड द क्लॉक मीन्स आप 24 आवर्स में कभी भी गुड्स को बाई कर सकते हो, ओके। जैसे अभी आपका होता है, हमने जो पढ़ा चेन स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर, इसका क्या है, क्या ये आपको लगता है कि 24 आवर्स ओपन रहता है? इसका टाइमिंग होता है 10 to 10 AM to 10 PM, बट इसका क्या है, ये राउंड द क्लॉक मीन्स आप 12 AM से, अगर आप 15 जुलाई को स्टार्ट किए वो ओपन है तो वो 16 जुलाई को 12 AM, मतलब 24/7 ये कंटिन्यूअस रहता है। ये आप कभी भी, आपको कोई भी कमोडिटी को परचेस करना हो, यू कैन गो थ्रू इट, ओके। सो नेक्स्ट वन इज़ द कस्टमर गेट्स फ्रेश सप्लाई ऑफ गुड्स विथ यूनिफॉर्म वेट एंड क्वालिटी। कस्टमर जो हैं वो फ्रेश, जो भी गुड्स हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स, वो उनको फ्रेश मिलेगा विथ यूनिफॉर्म वेट एंड क्वालिटी। उसका वेट भी ऐसा नहीं है कि वो उसके साथ कुछ मैनिपुलेट करेगा, एज वेल एज ऑल्सो विद द क्वालिटी, तो उसका वेट भी एकदम यूनिफॉर्म होगा एज वेल एज क्वालिटी। ऑल्सो नो रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल्समैन, वहाँ पे कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है कि कोई सेल्समैन होना चाहिए, बस वो प्रॉपरली मशीन होगी, आप उसमें पैसा एंटर करो, मनी एंटर करो, टोकन एंटर करो, एंड दैट वो जिसकी भी मशीन। अब ये नहीं कि मिल्क की मशीन है तो आप यू आर एक्सपेक्टिंग कि वहाँ से आपको कोल्ड ड्रिंक निकलेगी, नहीं, वो क्या होगा, वहाँ से कोल्ड ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, सिगरेट्स है, जो भी वहाँ पे आपको नीड हो वहाँ पे आपको वहाँ से उसको विड्रॉ कर सकते हो, ओके। सो सम ड्रॉबैक्स ऑफ द वेंडिंग मशीन्स आर ऑल्सो देयर। सो फर्स्ट वन इज़ इनिशियल इन्वेस्टमेंट टू इंस्टॉल द मशीन इज़ क्वाइट हाई, ठीक है। इसका जो इन्वेस्टमेंट है, मतलब अगर इस मशीन को इंस्टॉल करना है तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, मतलब हर एक कंट्री इसको बेयर मतलब नहीं कर सकती है, अफोर्ड नहीं कर सकती है सिंपली, सबके लिए क्या है, रीज़नेबल प्राइस का नहीं है। इनिशियली इसको इन्वेस्ट करना, मनी इन्वेस्ट करना फॉर इंस्टॉलिंग दीज मशीन आर क्वाइट हाई, ओके। मशीन्स रिक्वायर रेगुलर रिपेयर एंड मेंटेनेंस। अब एज़ यू ऑलरेडी नो कि कोई भी मशीन्स को हम ये सोचें कि वो कंटिन्यूसली हमेशा वैसे ही चलेगी तो इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। उस कंडीशन पे क्या होता है कि उस मशीन्स को क्या है कि आप एक रेगुलर इंटरवल पे आपको क्या करना पड़ेगा, उसको रिपेयर और उसका मेंटेनेंस भी आपको कराना पड़ेगा, ओके। सो नेक्स्ट वन इज़ कॉइन्स ऑफ एग्जैक्ट शेप्स एंड साइज आर रिक्वायर्ड टू ऑपरेट द मशीन। अब इसमें ये भी है कि हर एक कॉइन क्या है, इसमें यूज़ नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब उसका एक एग्जैक्ट शेप होना चाहिए। अगर आप देखे होंगे 5 का कॉइन होता है या 10 का कॉइन होता है, 1 रुपीज़ के कॉइन होते हैं, तो उसके साइज़ में डिफरेंस होता है ना। 5 का कॉइन थोड़ा सा छोटा होता है, 10 का थोड़ा बड़ा होता है। तो इसमें भी क्या है कि एग्जैक्ट शेप के ही कॉइन्स को यूज़ किया जा सकता है ऑपरेट द मशीन, ओके। कॉइन्स ऑफ एग्जैक्ट शेप एंड साइज आर रिक्वायर्ड टू ऑपरेट द मशीन को ऑपरेट करने के लिए। सो इन इंडिया वेंडिंग मशीन आर नॉट वेरी पॉपुलर ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल रिटेल स्टोर्स। इंडिया में ये वेंडिंग जो मशीन्स हैं वो क्या बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी जो स्मॉल रिटेल स्टोर्स हैं, मतलब जो हम लोग देखते हैं जनरल स्टोर्स, ये सारी स्टोर्स क्या हैं वो ऑलरेडी बहुत लार्ज नंबर में है, इसलिए ये ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ है, ओके। सो in this chapter you have the topic that is GST, goods and services tax, but as you already know that is there is deduction in the your syllabus which is done by the CBSE, so you have not to study that topic, that is goods and services tax. So the next topic is Chamber of Commerce and the Industry, okay. So Chamber of first of all we should know what is Chamber of Commerce and Industry, कि ये है क्या, करता क्या है। तो इसके लिए पढ़ते हैं हम लोग। सो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज आर वॉलेंट्री एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स
and industries are voluntary and non-profit making organizations for all type of businessman operating in a particular territory for the protection of interest of the businessman in general and that territory in particular. In simple words, we can say a chamber of commerce is representative body of businessman. It represents the business community of a particular region irrespective of a particular industry or trade. The composition and formation of a chamber of commerce differ from country to country. In India, every major state had its own chamber of commerce. Example, Delhi Chamber of Commerce, Bengal Chamber of Commerce, Punjab Chamber of Commerce, etc. Many Chamber of Commerce are affiliated to the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry. This is called FICCI. Okay, तो क्या है ये? तो Chamber of Commerce and Industry are voluntary and non प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन. ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो विथ ओन इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट के साथ, और नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है. इनका मेन मोटिव प्रॉफिट को मेक करना नहीं है. ये नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है फॉर ऑल टाइप ऑफ बिजनेसमैन, फॉर ऑल टाइप ऑफ जिस टाइप के बिजनेसमैन हो उनके लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या है, एक वॉलंटरी मीन्स विथ ओन इंटरेस्ट और नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है फॉर ऑल टाइप ऑफ बिजनेसमैन ऑपरेटिंग इन अ पर्टिकुलर टेरिटरी. ठीक है, कहाँ पे वो ऑपरेट करें, किसी एक पर्टिकुलर टेरिटरी में जो ऑपरेट कर रहे हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेसमैन. ये बेसिकली काम क्यों करते हैं कि जो भी इंटरेस्ट है बिजनेसमैन का उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इन जनरल एंड दैट टेरिटरी इन पर्टिकुलर. ठीक है, जनरल वो क्या करते हैं, उन प्रोटेक्शन इंटरेस्ट जो है इंटरेस्ट ऑफ द एनी बिजनेसमैन का वो प्रोटेक्ट करते हैं जनरली, और एज वेल एज जो टेरिटरी है उसका पर्टिकुलरली वो इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी बिजनेसमैन का. ओके, सो इन सिंपल वर्ड वी कैन से दैट अ चैम्बर ऑफ कॉमर्स इज रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ बिजनेसमैन. जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है वो क्या है, ये जो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है बिजनेस बॉडी को, बिजनेसमैन की को रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, मतलब बिजनेसमैन को ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, एज अ बिजनेसमैन इसको ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है. इट रिप्रेजेंट द बिजनेस कम्युनिटी ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन. ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी बिजनेस कम्युनिटी किसी भी पर्टिकुलर रीजन की, मतलब अगर हम वाराणसी रीजन के ले लेते हैं तो उसकी जो भी बिजनेस की कम्युनिटी है उसको रिप्रेजेंट करता है इररिस्पेक्टिव ऑफ पर्टिकुलर इंडस्ट्री और ट्रेड. मतलब इंडस्ट्री और ट्रेड के जगह पे वो क्या करता है कि एक बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, पूरे इंडस्ट्री और ट्रेड को ना करके एक बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है. द कंपोजिशन एंड द फॉर्मेशन ऑफ ए चैम्बर ऑफ कॉमर्स डिफरेंट फ्रॉम कंट्री टू कंट्री. ये जो कैसे ये कंपोज होगा, कैसे इसका फॉर्मेशन होगा, इसका बनना कैसे होगा चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, ये डिफ़र फ्रॉम द कंट्री टू कंट्री भी ये डिफ़र करता है. इंडिया में अलग होगा, अदर कंट्रीज़ में अलग होगा. ओके, सो इन इंडिया एवरी मेजर स्टेट हैज़ इट्स ओन चैम्बर ऑफ कॉमर्स. ओके, इंडिया में हर एक जो मेजर स्टेट्स हैं, हर एक स्टेट का अपना एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स है. फॉर एग्जांपल दिल्ली का अपना चैम्बर कॉमर्स है. ये बेसिकली करते क्या है चैम्बर ऑफ कॉमर्स किसी भी बिजनेसमैन की उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं. मतलब वो जो भी बिज़नेस एक्टिविटीज़ करेंगे उनको जो भी सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है उसको दे आर प्रोटेक्टिंग, एज वेल एज बिजनेसमैन को ये रिप्रेजेंट करते हैं कि ये इस बिज़नेस से रिप्रेजेंट करते हैं. उनकी एक कम्युनिटी होगी, अगर एक इससे रिलेटेड है तो एक ग्रुप में होंगे, उससे रिलेटेड है तो एक ग्रुप में होंगे. तो ये क्या है, बिज़नेस कम्युनिटी है. और हर एक स्टेट में, इवन हर एक कंट्री में ये क्या होता है, अलग अलग होता है. और इंडिया के हर एक मेजर स्टेट, मतलब जो बिग स्टेट्स हैं उसमें क्या है, अपने खुद के चैम्बर ऑफ कॉमर्स होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल दिल्ली चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, पंजाब चैम्बर ऑफ कॉमर्स, एक्सेट्रा. सो मैनी चैम्बर ऑफ कॉमर्स आर एफिलिएटेड टू फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. और जो बहुत सारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स है लाइक दिल्ली, बंगाल, पंजाब, ये सारे एफिलिएटेड किससे होते हैं,
फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, ये सारे एक से रिलेटेड होते हैं। दिस इज कॉल्ड FICCI, दैट मीन्स फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ओके, तो ये होता है चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ओके, सो नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द डिफरेंट रोल्स और द फंक्शंस ऑफ द चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो हैं उनके बेसिकली ये रोल और फंक्शंस क्या है, वो करता क्या है। तो फर्स्ट वन इज़ इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स। ठीक है, अभी हम जान गए कि ये बिज़नेस किसी भी बिजनेसमैन के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, बिज़नेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। हर एक स्टेट के अपने अपने क्या होते हैं, खुद के चैम्बर ऑफ कॉमर्स होते हैं, और इनको ये डिफरेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स किससे एफिलिएटेड होते हैं, फिक्की से एफिलिएटेड होते हैं। अब इनके फंक्शंस और रोल क्या हैं। तो फर्स्ट वन इज़ इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स। So the Chamber of Commerce and Industry facilitate inter-state movement of goods by registration of vehicle, construction of highway and road etc. ठीक है, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है वो क्या करता है, इंटर स्टेट मतलब स्टेट के अंदर ही मूवमेंट ऑफ गुड्स बाय द रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल। ठीक है, इंटर स्टेट क्या करता है, जितने भी स्टेट्स हैं उनके अंदर ही गुड्स को क्या करता है, मूवमेंट करता है। कैसे, बाय रजिस्ट्रेशन व्हीकल का रजिस्टर्ड हो जाती हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवेज़ एंड रोड्स, इसके थ्रू क्या होता है, जो भी जितने भी डिफरेंट गुड्स हैं वो मूव करते हैं इंटर स्टेट। ओके, नेक्स्ट वन इज़ प्रमोटिंग सोशल साउंड इंफ्रास्ट्रक्चर। द चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री होल्ड discussion with the government agencies for investment into the infrastructure project like road, port, electricity, railway etc. for promoting the sale. So promoting the sound infrastructure, ये किसको प्रमोट करता है कि एक इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मतलब साउंड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बहुत ज़्यादा उसमें फ्रूटफुल हो, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री होल्ड दी डिस्कशन विद द गवर्नमेंट एजेंसी। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, गवर्नमेंट की एजेंसीज़ के साथ डिस्कशन करती हैं फॉर इन्वेस्टमेंट इनटू द इंफ्रास्ट्रक्चर, कि इन्वेस्टमेंट किस में करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में करना चाहिए। ठीक है, जो भी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं, रोड हो गए, डैम्स हो गए, आपके ब्रिजेस हो गए, रेलवे हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इन पे क्या करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लाइक रोड्स, पोर्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, रेलवे फॉर प्रमोटिंग। अब ये सब क्या है, ये सब अगर प्रॉपरली मेंटेन्ड होंगे तो ट्रेड करना भी क्या हो जाएगा, ईजिली हो जाएगा। इसलिए ये जो चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स होते हैं वो गवर्नमेंट की एजेंसीज़ के साथ डिस्कशन करते हैं कि आप क्या करिए कि जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उन पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करिए। अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे ज़्यादा तो क्या होगा, प्रॉपरली सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएगी। अब जब प्रॉपरली सब कुछ फैसिलिटीज़ मिल जाएगी तो ट्रेड करना भी क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा, और ट्रेड भी प्रमोट होगा। ओके, नेक्स्ट वन इज़ वेट एंड measures of the prevention of the duplication brand. The Chamber of Commerce and Industry interact with the government to formulate laws related to weight and measures and the protection of brands and take action against those who are violate rules and regulation. Okay, तो ये क्या करता है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इंटरेक्ट विद द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के साथ ये लोग इंटरेक्ट करते हैं टू फॉर्मुलेट द लॉज। क्या करते हैं, इंटरेक्ट करके एक दूसरे से वो लॉज, डिफरेंट जो लॉज होते हैं उनको बनाते हैं। टू वेट एंड मेजर्स, कि कोई भी गुड्स के कितना वेट होगा, उसके कौन से मेजर्स होंगे, किसके थ्रू उसको मेजर किया जाएगा, और प्रोटेक्शन ऑफ द ब्रांड, जितने भी ब्रांड है उनका प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। एंड टेक्स एक्शन, और एक्शन टेक, कोई भी एक्शन ले अगेंस्ट दोज हु वॉयलेट द रूल्स एंड रेगुलेशन, और उसकी अगेंस्ट क्या करे, एक्शन ले जो कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन को वॉयलेट कर रहा है। ओके, तो जो भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स है ये सब इनके फंक्शंस हैं कि करते क्या हैं। वो उनसे बात करेंगे गवर्नमेंट एजेंसीज़ के साथ, उनसे प्रॉपरली उनका मेजर होगा कि लॉज बनाएंगे कि कोई भी प्रोडक्ट का वेट कितना है, उसका मेजर कैसे है, उसको हम किसके थ्रू मेजर करेंगे। प्रोटेक्शन, जो भी ब्रांड है उसको कोई और डुप्लीकेट न बना दे, उसका डुप्लीकेशन ना हो जाए, तो उस ब्रांड को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। एज वेल एज़ कोई भी अगर रूल्स को और रेगुलेशंस को वॉयलेट करता है तो उसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन ले लेने के लिए वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स
डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसी से डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वन इज लेबर लेजिस्लेशन। ओके, सो लेबर लेजिस्लेशन, the chamber of commerce and industry and the government are constantly interacting on the issues like labor laws, retrenchment policies, etc. ठीक है, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज होते हैं वो और गवर्नमेंट वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यूसली एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं, कॉन्टैक्ट में रहते हैं, वो लोग इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ फॉर दी इश्यूज़ लाइक द लेबर लॉज, कि लेबर जो हैं उनके लिए कौन से ऐसे लॉज बनाए गए मिनिमम वेज प्रोवाइड करने के, जो भी कितने आवर्स उनको काम करना है, ये सारे लॉज, एज वेल एज रीट्रेंचमेंट पॉलिसीज़ की, मतलब कोई भी वर्कर को अगर वर्क कर रहा है उसको अगर विथड्रॉ करना है उस जॉब से तो उससे रिलेटेड कौन सी पॉलिसीज़ है। तो इन सारों से रिलेटेड जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ हैं वो गवर्नमेंट के साथ कॉन्स्टेंटली क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, डिफरेंट जो भी इश्यूज़ है उस पर वो डिस्कशन भी करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ हार्मोनाइजेशन ऑफ द टैक्स स्ट्रक्चर। सो द हार्मोनाइजेशन ऑफ द टैक्स